یہ بات سچ ہے. حالانکہ اس سے پہلے میں ادھر چرچ جاتی تھی پاسٹر عابد کے، وہاں میں نے تلاوت کرنی، کلام بھی بیان کرنا، لیکن جب میں ادھر آئی تو میں نے کہنا بوا جی میں نے نہیں دعا کرنی. تو بوا جی نے اور پاسٹر صاحب نے میرے پیچھے کھڑے ہونا اور کہنا کہ نہیں ارم دعا کر. تو خداوند کا شکر ہے کہ جب میں چھوٹی تھی، بچپن میں تھی، تو میں اپنے گاؤں چرچ جاتی تھی تو ہم وہاں جا کے صفائی کرتے تھے. میں زیادہ کرتی تھی، میں نے 3 سے 4 5 دفعہ وہاں سے صفائی کرنی. میں نے کہنا کہ یہاں پہ نا گندگی نہ رہ جائے، یہاں پہ تو اینٹ پتھر کے فرش ہے، لیکن گاؤں میں جو ہمارا چرچ تھا اس کا جو سین تھا وہ کچا تھا. 6 دفعہ میں نے صاف کرنا اور میں نے اپنی سب دوستوں سے کہنا کہ اچھی طرح صفائی کرنی ہے جس سے خداوند خوش ہو. جب میں نے پہلے شروع کیا خدا کی خدمت کا کام تو یہی تھا کہ میں خدا کے گھر کی صفائی جو ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے کرتی تھی اور مجھے پسند تھا خدا کے گھر کو صاف کرنا. وہاں پر ٹیبل جو بھی چرچ میں تھا فرنیچر اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا مجھے بہت پسند تھا. اور شاید خداوند کو یہی چیز پسند آئی کہ خدا نے مجھے چنا اور میں خوش ہوں کہ خداوند نے یہ مجھے برکت دی. اور میں نے اسی چرچ سے زیادہ سٹارٹ کیا میٹنگ لیڈ کرنا، پھر کمنٹ بیان کرنا، اور آج یہ میرا پہلا دن ہے کہ میں یہاں پر سب کے سامنے کلام بیان کر رہی ہوں اور خداوند کا شکر ہے. اور میں تھینکفل ہوں پاسٹر ناصر کی اور ٹیم کی اور چرچ کے سارے ممبرز کی کہ انہوں نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں آج کا کلام جو ہے وہ بیان کر سکوں. اور میری طرف سے آپ سب کو کرسمس اور نیا سال بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ میں چرچ کے دنوں میں یہاں پر نہیں آئی. میرے ساتھ نکالیے گا دانیل کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی 24 آیت. یہ ہے آج کی ہماری پہلی تلاوت. اسی طرح ہماری جو دوسری تلاوت ہے وہ ہے گرنتھیوں کا دوسرا خط اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت. اسی طرح میرے ساتھ تیسری تلاوت بھی دیکھیے گا یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 6 آیت. میرے ہم خدمت بھائی ہیں ہارون بھائی جو مجھ سے سینئر ہے اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اور میں چاہوں گی کہ پہلی تلاوت وہ کرے. جی کلام مقدس میں بڑے غور سے سنیے گا. لکھا ہے بس ہارون بھائی مائک لے لو. ہارون بھائی مجھ سے سینئر ہیں، وہ زیادہ کلام مجھ سے زیادہ بیان کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ وہی آج تلاوت بیان کریں. پریز ہالیلویا. کلام مقدس میں سے دانیل کی کتاب اس کا 5 باب 24 اور 25 آیت کی تلاوت کی جائے گی. بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا. لکھا ہے بس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے منے منے تکیل و فصیح. آمین. آمین. تھینک یو. اور دوسری تلاوت میں چاہوں گی نیکا کرے گا گرنتھیوں کا دوسرا خط اس کا 3 باب اور 3 آیت. گرنتھیوں کا دوسرا خط اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت. پریز ہالیلویا. دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 3 باب اور 3 آیت. ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کے تختوں پر نہیں بلکہ گوشت کے یعنی دل کی تختوں پر. خدا ان کا پڑھا جانا سنا جانا آپ کے لیے باعث برکت ہے. آمین. اب ہم پڑھیں گے تیسری تلاوت.
यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 8 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, उन्होंने आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। आमीन। कलाम पाक का पढ़ा जाना, सुना जाना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन। सब तशरीफ रखें। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, वो जो पाक है, जो गयूर है, जो खुदाए सलूस है, जो खुदावंदों का खुदा है, जो बादशाहों का बादशाह है। आज मेरे पास कलाम का जो टॉपिक है वो है हैंड ऑफ गॉड। हैंड ऑफ गॉड का मतलब खुदा का हाथ। जैसा कि हरून भाई ने अभी तलावत किया, दानियल की किताब उसका 5 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है, बस उसकी तरफ से हाथ का वो हिस्सा भेजा गया और ये नविश्ता लिखा गया, और वो नविश्ता ये है, मिने मिने तकीलो फरसी। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा का जो हाथ है वो कभी हाथ है, वो हमें बचाता है, वो हमें छुड़ाता है। खुदा का हाथ बहुत औकात हमारी अदालत भी करता है, और खुदा का हाथ हमें कवानीनों शरीयत भी देता है, वो हमें अहकामात भी देता है, क्योंकि खुदा जो है वो पाक है, वो रहीम है, वो खुदावंदों का खुदा है। यहाँ पर हम देखते हैं बेलशास्सर जो है उसने एक दावत रखी है, ज़ियाफत रखी है। जब आप दानियल की किताब का मुताला करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आप खुद पढ़ेंगे कि वो एक ज़ियाफत करता है और बहुत से उमरा को वहां पर बुलाता है और उनकी ज़ियाफत करता है, और वहां पर वो हुर्मों के साथ, अपनी बीवियों के साथ, हैकल के जो बर्तन होते हैं, पाक बर्तन होते हैं, उनमें मैखोरी करता है, उनके साथ मिलकर नशा करता है। बेलशास्सर जो है नबूकदनेस्सर का बेटा है, और अजीज बहनों और भाइयों, उसका जो बाप होता है उसने भी बहुत अच्छे काम नहीं किए होते, और ये जो बेलशास्सर है ये भी उससे बढ़कर गलती करता है। उन बर्तनों को इस्तेमाल करता है, और पाक कलाम में लिखा है कि उसने पीतल की और लकड़ी की और पत्थर की वहां पर क्या करता है, पूजा करता है। हालांकि खुदा बारहा हम सबको मना करते हैं कि हमने अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त नहीं बनानी, हमने किसी देवता की, किसी पत्थर की, किसी ईंट की पूजा नहीं करनी। बारहा खुदा ने हमें ये समझाया है, पाक कलाम में लिखकर बहुत से अंबिया ने, बहुत से रसूलों ने बार बार ताकीद की है कि अपने लिए कोई मूर्त ना बनाना, किसी पत्थर या ईंट की पूजा ना करना। लेकिन यहाँ पर उसने खुदा की नाफरमानी की, उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा, वो खुदा के अगेंस्ट गया, उसने उन बर्तनों में मैखोरी की और उन लोगों के साथ मिलकर खुदा के हुक्म को तोड़ा। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, और उसके मानी ये है, मैंने यानी खुदा ने तेरी ममलकत का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला। जी अजीज बहनों और भाइयों, जब खुदा ने देखा कि उसने खुदा की नाफरमानी की है, तो उसने उसकी ममलकत का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला। अजीज बहनों और भाइयों,
उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जब उसने नशा किया हुआ था तो उसे खुदा का एक हाथ नजर आया, जो आज मेरा टॉपिक है, हैंड ऑफ गॉड। उसे खुदा का हाथ नजर आता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि ये किसका हाथ है। वो पूरी रात सोता नहीं, यहाँ तक कि उसकी कमर जो है वो ढीली हो जाती है और उसके घुटने जो है वो लड़खड़ाने लगते हैं। वो बहुत डर जाता है, वो बहुत घबरा जाता है और वो सोचता है कि ये किसका हाथ है। वो बहुत से मालगीरों को बुलाता है, वो बहुत से लोगों को, नजूमियों को बुलाता है कि कोई इस हाथ के बारे में मुझे बताए, लेकिन कोई भी इंसान उसे नहीं बताता कि ये क्या है। लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ा है कि वो खुदा का नविश्ता है, और जब उसके साथ ऐसा होता है तो उसकी माँ आती है, नबूकदनेस्सर की बीवी, और उससे कहती है कि ऐ बेटे तू अब तक जिंदा रह। और उसको कहती है कि जब उसे पता चलता है कि मेरा बेटा पूरी रात सोया नहीं, वो तकलीफ में है और उसे पता नहीं चल रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा होता है, खुदा के हुक्म अधूरी की होती है, तो वो बेचैन हो जाता है। आज जब हम भी गुनाह करते हैं, खुदा के अगेंस्ट जाते हैं, तो हमारी जो रूह है वो भी इसी तरह होती है, हमारी जो जान है वो भी तल्ख हो जाती है, जिस तरह वहां बेलशस्सर की जान तल्ख हो रही थी। तो अजीज बहनों और भाइयों, उसकी माँ उससे कहती है कि बेलशस्सर दानिएल को बुला, वो तुझे इसका मतलब बताएगा। और वो उसको बुलाता है और कहता है कि तू वही है जिसको मेरा बाप यहूदा से लेकर आया। तो वो आता है, उसके हजूर हाजिर होता है और वो कहता है कि उसके गले में तोप डाला जाएगा और काफी उसका इनाम रखता है कि जो उसे उसके नविश्ते के बारे में बताएगा, उस हाथ के बारे में बताएगा। तो वो कहता है कि बेशक तू मुझे दौलत दे ना दे, लेकिन मैं तेरे इस हाथ के बारे में जरूर तुझे बताऊंगा। और वो उसे बताता है कि ये खुदा का हाथ है जो तुझे नजर आया है। और जैसा कि यहाँ पर आगे हम 26 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और उसके मानी ये है, मैंने यानी खुदा ने तेरी ममलकत का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला, ताकि यानी तू तराजू में तोला गया और कम निकला। फरीस यानी तेरी ममलकत मुनकसम हुई और मादियों और फारसियों को दी गई। दानिएल ने उसके नविश्ते का मतलब उसे समझाया, उस हाथ के बारे में उसे बताया। उसने कहा कि खुदा तुझसे बहुत प्यार करता था और खुदा ने इतनी ज्यादा उससे दौलत, शोहरत, इज्जत बख्शी, लेकिन उसने खुदा के हुक्म को तोड़ डाला और जितनी भी उसके पास दौलत थी, जो कुछ जायदाद था, वो खुदा ने सब कुछ ले लिया। और लिखा है कि वो मादियों और फारसियों को दे दिया। यहाँ पर खुदा के हाथ ने उसकी अदालत की। अजीज बहनों और भाइयों, आज हमें भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए कि हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेलशस्सर की अदालत हुई और जब हम भी खुदा के हुक्म को तोड़ेंगे तो खुदा हमारी भी अदालत करेगा, जिस तरह बेलशस्सर की अदालत हुई। और दानिएल ने उसे बताया कि तूने ये किया है और फिर खुदा ने तेरे साथ ये किया है। आज अपनी जिंदगियों के बारे में सोचें, जब हम भी गुनाह करते हैं तो हमारी भी जो जान है वो
किस कदर हमारे अंदर बार बार मलामत करती है कि हमने खुदा के हुक्म को तोड़ा है। फिर खुदा जब अदालत करता है तो खुदा हमें सजा भी देता है, और वो उसी रात जो है बेलशीज़र की मौत वाक़या हुई, वो मर गया क्योंकि वो खुदा के खिलाफ गया, उसने गुनाह किया, उसने शरीयत को तोड़ दिया, उस बात को तोड़ दिया जो खुदा ने उससे कवानीनों अहकामात दिए थे। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा जो है वो कभी भी हमारी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो हमें बचाता है। जैसा कि मैंने बताया कि खुदा का जो हाथ है वो अदालत भी करता है, और वो छुड़ाता भी है, और वो हमें बचाता भी है। वर्ष की किताब में लिखा है 11 बाब और उसकी 9 जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और इनायाम में अपने जी को बहला, अपने दिल की राहों में अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसी तरह वाइस की किताब उसका 12 बाब और उसकी 14 में भी लिखा है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पुशीदा चीज के साथ, ख्वाह भली हो ख्वाह बुरी, अदालत में लाएगा। आज इस दुनिया में हम जो कुछ मर्जी कर लें, अच्छा करें या बुरा करें, whatever, everything जो है एक दिन खुदा अदालत में लाएगा। और यिर्मयाह की किताब उसका एक बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, इससे बेशतर कि मैंने तुझे बातन में खलक किया, उससे बेशतर ही मैं तुझे जानता हूँ। जब हम बेतरतीब मादा होते हैं तो उससे पहले खुदा हमें जानता है। ज़बूर की किताब 139 ज़बूर उसकी 7 से 10 आयत तक हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊंगा, या तेरी हजूरी से किधर भागूंगा। अगर मैं पाताल में बिस्तर बचाऊं तो देख तू वहां भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समंदर की तह में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मुझे संभालेगा। हम खुदा के हाथ से बचकर कहीं भी नहीं जा सकते। ज़बूर की किताब पढ़कर देख ले, वहां पर साफ साफ लिखा है कि तेरा हाथ समंदर की तह में भी मुझे संभालेगा। बेशक वो अदालत करता है, वो सजा देता है, लेकिन वो बचाने की कुदरत भी रखता है, क्योंकि वो रहीम है, वो पाक है और उसके पास ये कुदरत है। इसी तरह जब हम करंथियों का दूसरा खत उसका 3 बाब उसकी 3 आयत को अभी बेटे ने पढ़ा और लिखा है, जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। जब खुदा जो है मूसवी शरीयत में हम पढ़ते हैं, खुरूज की किताब उसका 31 बाब उसकी 18 आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने मूसा को अपने हाथ से शहादत की 2 लोहें लिख कर दी। यहाँ पर भी खुदा का जो हाथ है वो हमारे लिए काम करता है। खुदा के हाथ ने हमें बचाने के लिए वो शरीयत और वो कवानीन और वो अहकामात दिए। और इसी तरह खुरूज की किताब उसका 32 बाब और उसकी 15-16 आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा है, मूसा शहादत की 2 लोहें लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहें इधर से उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी। खुदा ने अपने हाथ से उन लोहों पर हमारे लिए कवानीन
और शरीयत और अहकामात लिखे थे। यहाँ पर भी खुदा के हाथ ने हमारे लिए सबसे पहला और बड़ा काम किया, क्योंकि उसका जो हाथ है वो हमें बारहा तनबीह करता है, वो बचाता है, वो छुड़ाता है और वो हमारी अदालत भी करता है। इसी तरह अस्तिस्ना की किताब उसका 9 बाब पर उसकी 10 आयत का जब हम मताला करते हैं, वहां पर भी लिखा है, खुदा ने अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों लोहें मेरे सुपुर्द की। उन पर वही बातें लिखी हुई थी जो खुदावन ने पहाड़ पर आग के बीच में मजमा के दिन तुमसे कही थी। अजीज बहनों और भाइयों, यहाँ भी हमें बहुत अच्छी स्टोरी मिलती है। जब मूसा जो है वो पहाड़ पर जाता है और खुदा जो है उससे वो 2 लोहे लिख कर देते हैं, तो नीचे लोग जो है हारून के साथ मिलकर बछड़ा बना लेते हैं। वो उनसे जेवरात लेता है, सोना इकट्ठा करता है और उनको बछड़ा बना देता है, और वो सब मिलकर जिंदा खुदा को छोड़कर उस बछड़े की पूजा करने लग जाते हैं। खुदा हारून से बहुत नाराज होता है, क्योंकि उसने लोगों के साथ मिलकर वो बछड़ा बना दिया, खुदा के अगेंस्ट गया, खुदा के अगेंस्ट उसने गुनाह किया, और लोग जो हैं उस बछड़े की पूजा करना शुरू कर देते हैं। जब आप कलाम को पढ़ेंगे तो खुद देखिएगा कि वहां पर फिर खुदा का कहर जो है लोगों पर, बनी इस्राएल पर भड़कता है। खुदा नाराज होता है, क्योंकि वो खुदा के खिलाफ जाते हैं और खुदा के अगेंस्ट बछड़ा बनाकर वो उसकी पूजा करने लग जाते हैं। उन्होंने मूसा का इंतजार नहीं किया, वो मूसा के बगैर ही अपने आप से ये करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोग रवील खुदा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे सामने खुदा हो और हम उसकी पूजा करें। अजीज बहनों और भाइयों, बेशक खुदा अनसीन है, लेकिन जो लोग हैं उससे रवील खुदा चाहते हैं। जब आप किसी दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, कोई मर जाता है या आपको बड़ी तकलीफ होती है, अपनी आंखें बंद करें और उस खुदा के आगे आजिज होकर बैठ जाएं और देखें, फिर खुदा आपको नजर नहीं आता। जब आप किसी दुख में होंगे, परेशानी में होंगे, बहुत तकलीफ होगी आपके दिल में, सीने में, आप अपनी आंखें बंद करें और मेरा वादा है कि खुदा आपको जरूर नजर आएगा। उन लोगों ने गुनाह किया, खुदा उनसे नाराज हुआ और उनसे भी नाराज हुआ और उन लोगों से भी नाराज हुआ। लेकिन जैसा कि अभी हमने कलाम में पढ़ा है, ग्रंथियों का दूसरा खत उसका 3 बाब और 3 आयत पढ़ी है, और खुदा यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि अब खुदा जो है वो तख्तियों पर नहीं बल्कि हमारे दिलों पर लिखना चाहता है। ये जो हमारा जिस्म है, हमारा बदन है, ये खुदा की हैकल है, और जो हमारा दिल है ये पाक होना चाहिए, क्योंकि खुदा इस पर लिखना चाहता है पाक रूह से अपने उन तमाम अहकामात को, उन कवानीन को, क्योंकि खुदा चाहता है जिस तरह उसके अहकामात और खुदा पाक है, हमारा ये जो जिस्म है, ये जो हमारा दिल है, ये है खुदा की हैकल, और खुदा चाहता है कि ये भी पाक हो, क्योंकि खुदा इस दिल में रहता है। खुदा ईंट और पत्थर के घरों में नहीं रहता। ये अक्सर हमारे पास साहब नासिर भाई हमें ये बात बताते हैं, समझाते हैं। बड़ी दफा उन्होंने अपने सरमन में ये बयान किया है कि खुदा जो है वो ईंट पत्थर के घरों में नहीं रहता, बल्कि खुदा हमारे दिल में रहता है। और इस बात के लिए एक जोरदार क्लैपिंग करें, क्योंकि खुदा
और भाइयों, वो जो दो लोहे थी, तब भी खुदा के हाथ ने काम किया पहली दफा। और दूसरा, जब दानिएल वो जो ताबीर है, वो जो नविश्ता है, उसके बारे में बताता है, बेलशास्सर को नजर आता है। और अब हम देखेंगे कि तीसरी बार खुदा का हाथ हमें कहाँ नजर आता है। इससे पहले मैं चाहूंगी आप इस गेल की किताब उसका 36 बाब उसकी 26 आयत निकालें। और लिखा है, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। आमीन, हालेलुया। खुदा अब चाहता है कि ये जो हमारे दिल पत्थर हो जाते हैं, हम गैर मबूदों के पीछे भाग जाते हैं, लेकिन खुदा का हाथ बार बार हमें पकड़ कर लाता है कि हम खुदा के खिलाफ गुनाह ना करें, जिस तरह बेलशास्सर ने किया और वो मारा गया। खुदा ये नहीं चाहता कि आज हम भी बार बार गैर मबूदों के पीछे भागे, हम ईंट और पत्थर की पूजा करें, हम उसको खुदा जानकर उसके आगे झुके। हमें बेटे दे, हमें औलाद दे, हमें दौलत दे। अजीज बहनों और भाइयों, जो कुछ आपके पास है इस पर शुक्र करें, क्योंकि खुदा ने जो कुछ आपको दिया है अब उसने अपनी मर्जी से दिया है और उसी में हमें शुक्रगुजारी करनी है। हमने गैर मबूदों के पीछे नहीं भागना, हमने ईंट और पत्थर की या किसी और को खुदा बनाकर उससे बेटे बेटियां और दौलत हासिल नहीं करनी, बल्कि वही दौलत, वही बेटियां, वही बेटे लेने हैं जो हमारे जिंदा खुदा ने दिए हैं, क्योंकि वो पाक है और उसका हाथ कभी है, जो हमें बचाता है, जो हमें छुड़ाता है और हमारी अदालत भी करता है। आज जरूरत है हमें ये कहने की। ज़बूर की किताब उसका 51 ज़बूर और उसकी 10 आयत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असरे नो मुस्तकीम रूह डाल। जब आप इस कलाम को पढ़ते हैं तो यकीनन अजीज बहनों और भाइयों, आपको खुदा की तरफ से एक इत्मीनान मिलता है और ये सारा इत्मीनान हमारे जिंदा खुदा के पास है, क्योंकि वो पाक है, वो रहीम है। और कहने की जरूरत है कि खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। और खुदावन इब्रानियों 8 बाब और 10 आयत जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, खुदावन फरमाता है कि जो अहद इस्राएल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके ज़हन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। आमीन, हालेलुया। जब आप ये कहेंगे तो खुदा ने इतना खूबसूरत ये वादा जो किया है ये हमारे लिए है, उसकी उम्मत के लिए है। हम उसकी उम्मत हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। अब देखते हैं खुदा हमें कैसे बचाता है, उसका हाथ हमें किस तरह, किस जगह कैसे बचा लेता है। यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 6 आयत में हमने पढ़ा, उन्होंने आज़माने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, एक औरत है जो रेड हैंडेड यानी कि एन फेल
عورت کا انصاف کر. اور وہ وہاں پر کھڑی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں چاروں طرف پتھر اٹھا کر اس کو مارنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. یہودی شریعت کے مطابق کوئی بھی انسان عین فعل کے وقت گناہ کرتے وقت پکڑا جاتا تھا تو اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا جاتا تھا. یہ سزا تھی, یہ قانون تھا, یہ شریعت تھی. اور وہ عورت وہاں پر کھڑی ہے اور لوگوں نے, بچوں نے, بڑوں نے, جب آپ خود یہ سٹوری پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا. اور لوگ جو ہیں پتھر اٹھا کر وہاں پر کھڑے ہیں اور وہ عورت درمیان میں ہے. اور یسوع مسیح ناصری کو جب بلایا جاتا ہے تو یسوع مسیح ناصری وہاں جھک کر کچھ لکھنا, اپنی انگلی سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر بھی ہمیں خدا کا ہاتھ نظر آتا ہے. عزیز بہنوں اور بھائیوں, اب سوچیں, مثال کے طور پر ہم کھڑے ہیں, ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور ہمیں گرفتار کیا گیا ہے, لوگوں نے ہمیں پکڑا ہے اور چاروں طرف جو موت ہے ہماری طرف منڈلا رہی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم خدا کے حضور جھکیں گے اور دعا کریں گے. لیکن وہ جو عورت ہے جس کو پکڑا گیا ہے وہ وہاں پر کھڑی ہے اور یسوع مسیح وہاں پر لکھ رہے ہیں. اور یسوع مسیح ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پتھر وہ مارے جو بے گناہ ہے. عزیز بہنوں اور بھائیوں, آپ سب بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جب یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں؟ وہ لوگ پتھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کیونکہ سب گناہگار ہوتے ہیں. کوئی ایک بھی وہاں پر راست باز یا بے گناہ نہیں تھا. رومیو کا خط اس کا 3 باب اس کی 23 میں لکھا ہے, اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. یہی بات تھی, آج بھی یہی بات ہے. ہم میں سے سب سے پہلے کسی کو کون پتھر مارے گا؟ کیونکہ ہم سب گناہگار ہیں. ہم میں سے کوئی بھی راست باز نہیں, ہم میں سے کوئی بھی بے گناہ نہیں. اور جب وہ پتھر چھوڑ دیتے ہیں تو یسوع مسیح اس سے سوال کرتے ہیں, اس عورت سے, کہ کسی نے تم پر کوئی گناہ, کوئی حکم لاگو کیا؟ وہ کہتی ہے نہیں. اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جا. میں چاہوں گی یہ جو آیت ہے ناصر بھائی تلاوت کریں. ناصر بھائی کہیں, مجھے اچھا لگے گا جب وہ عورت کو, جب یسوع مسیح اسے کہتے ہیں, ناصر بھائی یہاں پر آ کر یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 6 آیت, اس سے آگے دیکھیں. جب وہ پتھر چھوڑ دیتے ہیں اور یسوع مسیح اس عورت سے کہتے ہیں کہ کیا کسی نے تجھ پر کوئی حکم لاگو کیا؟ تو یسوع وہ کہتی ہے کہ نہیں. اور یسوع مسیح آگے جو الفاظ بولتے ہیں میں چاہوں گی کہ وہ ناصر بھائی الفاظ ادا کریں. خداوند کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 6 آیت خداوند کے کلام میں. اوکے. خداوند کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 11ویں آیت. اس نے کہا, اے خداوند کسی نے نہیں,
यसु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना कर। आमीन, हालेलुया। आप देखिए यीशु मसीह के हाथ से, खुदा के हाथ से उस औरत को कैसे बचा लिया। उसकी अदालत भी हुई, लोग अपने अपने पत्थर लेकर वापस चले गए। यीशु मसीह ने, खुदा के हाथ ने उसकी जान बचाई। मैं चाहूंगी खुदा के हाथ के लिए एक जोरदार क्लैपिंग करें, क्योंकि वो जिंदा है, वो पाक है, वो रहीम है, वो कद्दूस है। और उसका हाथ जो है, कभी हाथ है, वो हमें बचाता है और वो हमें छुड़ाता है। पतरस का खत उसका 5 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे प्रार्थनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। उस औरत को वक्त पर सर बुलंद किया गया। और इसी तरह यशायाह की किताब उसका 29 बाब उसकी पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। खुदा का हाथ इस कदर छोटा नहीं जो आपको बचा ना सके। और खुदा जो है हमें वक्त पर सर बुलंद करता है, क्योंकि वो रहीम है। खुदा ने, यीशु मसीह ने उसकी अदालत की और यीशु मसीह ने उसे हुक्म दिया कि जा बेटी, फिर गुनाह ना करना। आज आप भी सोचें, अगर आप गुनाह में हैं तो अपने आप को आजिज करें, अपने आप को सरेंडर करें। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा लूका की अंजील उसका 13 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, अगर आगे को भला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। आज आपके पास वक्त है, अपने आप को टेस्ट करें, अपने आप को चेक करें। आप गुनाह में तो नहीं, अगर कोई गलती, कोई गुनाह आपसे सजद हो गया है तो झुके खुदा के आगे, उससे माफी मांगे, अपने आप को आजिज करें, खुदा से कहें कि खुदा मुझे माफ कर। यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छी स्टोरी मिलती है। एक बागबान होता है और 3 साल से उसने एक बाग लगाया होता है और वहां पर अंजीर का दरख्त होता है। और वो जब भी आता है 3 साल से वो जो दरख्त है फल नहीं देता। और वो उस बागबान से, माली से कहता है, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद इसको काट डालना। आज ये जो 2026 साल आपको मिला है, ये आपके पास गनीमत है। ये हम नहीं जानते ये साल, ये महीना, ये दिन, ये हफ्ता हमारा आखिरी हो। आज आपके पास वक्त है। जिस तरह आप जानते हैं कि बेलशीज़र के पास वक्त नहीं रहा था, उसने वो खुदा के खिलाफ किया, उसने गुनाह किया, उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा और खुदा ने उसकी अदालत की और वो रातों रात मर गया। लेकिन यहाँ पर देखें कि वो जो पाकिस्तान का मालिक है, वो कहता है कि इस दरख्त को काट डाल, लेकिन वो कहता है कि ए मालिक, इसको रहने दे, मैं इसके इर्द गिर्द थाला खोदूंगा, वो जमीन को जरखेज करूंगा, इसे पानी दूंगा। अगर ये इस साल फला तो ठीक है, नहीं तो इसको काट डालना। आज खुदा भी यही कहता है, हमें हुक्म देता है। आज सोचें, उसके पास झुके, आजिज़ी से अपने गुनाह का इकरार करें। खुदा आपकी जिंदगी उससे फल चाहता है, जिस तरह अंजीर के दरख्त से उसका मालिक फल चाहता है, खुदा आपकी जिंदगियों से भी फल चाहता है। आप फले बढ़े, जैसा कि पाक कलाम में देखिएगा, पैदाइश की किताब उसका 1 बाब उसकी 28 आयत में लिखा है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। खुदा आपको ये हुक्म देता है, लेकिन इससे पहले खुदा कहता है कि अपने आप को टेस्ट करो। अगर आपके अंदर कोई गुनाह है, आप बेफा
आमीन, हालेलुया। और खुदा का जो हाथ है वो हमें बचाता है, वो हमारी अदालत भी करता है। अगर हम आजिज हो जाते हैं, खुदा के आगे झुकते हैं, तो खुदा फिर हमें हर मुश्किल से, हर मुसीबत से बचा लेता है। लेकिन अगर हम नाफरमानी करते हैं तो बैतशेबा की तरह मरे जाते हैं।